Good morning. Today we will see next scheduling algorithm, that is round robin scheduling algorithm. Before that we have seen different types of algorithm: preemptive, non-preemptive, then FCFS, first come first serve, and priority scheduling. All the problems were similar and easy. Only thing we have to remember that you should write or draw Gantt chart perfectly. On left hand side bottom there will be a waiting time, and on the right side of a Gantt chart each block, that is block representing process, we are indicating turnaround time. After that we used to calculate the waiting time for each individual process, turnaround time for each individual process and then we find out the average. One change was there at the last problem. It was that we have given process number or process name and CPU burst time along with the arrival time. So in case of arrival time, whenever arrival time is provided, the formula for waiting time was starting time minus arrival time, and for turnaround time it was ending time minus arrival time. Calculation steps for each problem was same. Only thing, we have to arrange the block according to some criteria or manner. For FCFS it was different. For priority scheduling it was different depending on a priority. Today we will see the round robin scheduling algorithm. The round robin scheduling algorithm is designed for time sharing system. Remember time sharing system. What was there? There was a one CPU and multiple user, and specially allocated time called as a time quantum or a time slice was allocated for each user. Every process should be completed within that time period, that is the time quantum. If user cannot, then automatically the control will be shifted to the next user, and the process which was remaining will be resumed after all turns of the all user. It means user 1, user 2, user 3, user 4, then again user 1, user 2. So the round robin scheduling is designed especially for the time sharing system. Round robin is the preemptive. Preemptive means what? We forcibly takes the control of the CPU even though process has not completed. It was the priority scheduling. Preemptive scheduling. And what do you mean by non-preemptive? That is FCFS. Whenever process is assigned a CPU, it will release the CPU only when the process got completed. Okay. Now in case of round robin, what will be there or what we need to provide it? You should provide it with the process name or process number, that is P1, P2, P3 and P4 and continue, and the burst time. Burst time means what? The time slice or a time quantum which was defined in the time sharing system. Okay, but in case what you have to remember कि आपको रिमेंबर क्या करना है. कोई भी प्रोसेस रहे उसको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रॉब्लम में ढूंढो टाइम स्लाइस प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है. अगर नहीं किया है तो खुद एज्यूम करो लॉजिक लगा के, या फिर एग्जामिनर जो रहेगा उससे बात करो और एल्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखो. बिकॉज विदाउट टाइम स्लाइस
without time quantum or without time period given for each user, round robin scheduling cannot be calculated or cannot be implemented. So first and most important condition is what? It should be given with the process number and the burst time, but it it is strict, it must be strictly defined that you are with the time quantum or a time slice. We will see the first example. This is little bit tricky. Okay, now consider the following set of processes. How many processes are there? Three process P1, P2 and P3. But here clearly it is mentioned that burst time for P1 is 24, for P2 it is 3 and P3 it is 3. Means we have to draw the Gantt chart for the three processes, but it is not that much simple कि तीन प्रोसेस थी तो गैंट चार्ट में तीन ब्लॉक बन गए, जैसे एफ सी एफ एस में बनता था, 5 है तो 5 ब्लॉक बन गए. यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड को हम लोग तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं. सो देयर कैन बी मल्टीपल blocks or you can say more than the number of processes block, there can be process, the number of blocks can be more than the number of processes. So यहाँ पे P1 equal to 24, P2 equal to 3 and P3 equal to 3. ऊपर एक लाइन दी है देखो, टाइम क्वांटम क्या है, 4, बराबर है. इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस ज्वाइन होती है सीपीयू में तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड, मतलब वो कितने टाइम तक सीपीयू के साथ रह सकती है, 4. एंड एज दिस इज प्रीएम्प्टिव, व्हाट विल हैपन आफ्टर 4, ठीक है, 4 से माइक्रो सेकंड के बाद, मिली सेकंड जो रहेगा उसके बाद वो प्रोसेस क्या होगी, फोर्सिबली टेकन आउट. मतलब एक ही प्रोसेस का कंटिन्यू एग्जीक्यूशन नहीं होगा जैसे एफ सी एफ एस में होता है, जिसे नॉन प्रीएम्प्टिव बोलते हैं. ये कौन से प्रीएम्प्टिव है. तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद फोर्सिबली यूजर से वो सीपीयू निकाल दिया जाएगा. सो आगे चल के फ्लो क्या होगा, आपका P1 नाम की प्रोसेस सबसे पहले अलोकेट होगी, लेकिन उसके लिए देखो P1 को टाइम पीरियड लग रहा है 24, लेकिन यहाँ पे P1 को कितना मैंने असाइन किया है, ओनली 4 तक. कैसे हुआ ये, बिकॉज दिस इज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम. P1 को भले ही 24 यूनिट टाइम की ज़रूरत है, बर्स्ट टाइम है, बट वी कैन अलोकेट ओनली 4 बिकॉज टाइम क्वांटम, टाइम सेकंड, टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस इज व्हाट, 4 मिली सेकंड. ओके, सो P1 को 24 चाहिए, पर मैं कितना दे सकता हूँ, मैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अलाउ करेगी ओनली 4. इसका मतलब है उसका 20 मिली सेकंड का एग्जीक्यूशन पेंडिंग रह गया. अभी वो एग्जीक्यूशन तो कभी ना कभी करना है, वो बाद में करेंगे. अभी विदाउट कंप्लीटिंग द प्रोसेस 1, द ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्टेड द कंट्रोल ऑफ CPU टू प्रोसेस 2. दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस 2 को कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, 3 मिली सेकंड. सो 24 में से 4 दे सकते थे, वो हम लोग ने दे दिया. उसके बाद 3, सो 4 and 7, ये कितना हो गया आपका 3. P2, P को ज़रूरत कितने की थी, 3 की. टाइम क्वांटम की लिमिटेशन क्या है, 4. तो बट ऑब्वियस है ये प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट होके ख़त्म हो जाएगी. वापस से आने वाली है क्या P2, कभी नहीं. अभी P2 को
निकाल दो। अभी किसके पास जाओ, P3 के पास जाओ। P3 है, P3 को कितना टाइम लगने वाला है, तो आपका 3 दे दिया P3 को 3, 7 और 3 10, बट मैक्सिमम अलोकेशन कितने का हो सकता है, तो वो 4, लेकिन इसका काम भी कितने में हो गया, 3 में हो गया। मतलब अभी मेरे पास पहले थी P1, P2 एंड P3 थी। P1 एग्जीक्यूशन हुआ राउंड रॉबिन, मतलब गोर गोर घूमता है, P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 ऐसे होने वाला था, बट वैसे ही हुआ। P1 हुआ, P2 के पास गए, P3 के पास गए, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है, P2 और P3 वो सिस्टम से बाहर चले गए। अभी वापस मैं घूम के आऊँगा, किसके पास आऊँगा, P1 के पास आया। P1 का 24 में से 4 हो गया था, तो बचा कितना था, 20, तो 20 एलोकेट कर दिया। फिर वापस उसने चेक किया कि 4 के बाद वो टर्मिनेट करने वाला था, बट कभी जब भी सिस्टम में कोई और प्रोसेस रहती तभी। लेकिन यहाँ पे जो आगे की प्रोसेस थी जिसका नाम है P2 एंड P3, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो गई है। सो नो नीड टू टर्मिनेट द प्रोसेस 1। सो ऑल द रिमेनिंग स्लॉट दैट इज P1 का बचा हुआ 20, ये कहाँ पे असाइन हो गया, आगे असाइन हो गया, इसलिए 10 एंड 20। अभी कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। P1 यहाँ पे कितनी बार दिख रही है, 2 बार दिख रही है, दिख रही है ना, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे। सो इन दिस केस कंसिडर द टाइम ऑफ द लास्ट P1, क्योंकि वही वेटिंग टाइम है। P1 तो नहीं तो पहला गिनोगे तो बाद में भी उसको रुकना ही पड़ रहा है ना, टप्पे टप्पे में। सो इसका आंसर, इसका क्या आएगा, 10 माइनस पहले कहाँ पे छोड़ी थी, 4 पे, ठीक है, तो ये आएगा 10 माइनस 4। P2 कितना रुक रहा है, 4, P3 कितना रुक रहा है, 7। ये कैलकुलेशन नॉर्मल है। सिमिलरली टर्न अराउंड टाइम के लिए भी है, P1 कभी ख़त्म हो रहा है 30 पे, P3 कभी ख़त्म हो रहा है 10 पे, P2 कभी ख़त्म हो रहा है 7 पे। सो एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ये देखो फोटो में आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है 10 माइनस 4 क्या, क्योंकि P1 2 बार रुक रही है, P1 एग्जीक्यूशन 2 टाइम है, P2 के लिए ऐसा कुछ नहीं था, P3 के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर टर्न अराउंड टाइम पे भी सेम हुआ, P1 कितना रुका, P2 कितना रुका, P3 कितना रुका, और आफ्टर दैट प्रोसीजर इज सिंपल एंड सिमिलर। तीनों चीज़ें मिल गई है, P1 P2 P3, उसका वेटिंग टाइम निकालो, वेटिंग टाइम के ऊपर से एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, P1 P2 P3 टर्न अराउंड टाइम निकालो, टर्न अराउंड टाइम के ऊपर से उसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, बस। अभी और एक एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ा सा और बड़ा है, लेकिन आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल, प्रोसेस P1 अराइवल टाइम इज 0, प्रोसेस P2 अराइवल टाइम इज 1, सर्विस टाइम फॉर P1 was 5, P2 it was 3, P3 के लिए अराइवल टाइम 2, सर्विस टाइम दैट इज़ द बर्स्ट टाइम दैट इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम 8, P4 के लिए अराइवल टाइम 3 एंड सर्विस टाइम इज़ 6। नाउ ऊपर देखो, ज़रूरी है क्या है, टाइम क्वांटम प्रोवाइड करना है। टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया हुआ, तो टाइम क्वांटम कितना है, 3, मतलब प्रोसेस कितनी भी बड़ी हो उसका एट अ टाइम ओनली 3 मिली सेकेंड टाइम ही मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो गैंट चार्ट देखो, P1 एग्जीक्यूट करने के लिए आ गया 3, ठीक है, बचे कितने इसमें से, पेपर लेके आपको बैठना पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी नहीं है। तो P1 को टाइम अलोकेट कितना कर सकता हूँ मैं, 3, बट ज़रूरी कितना है, 5। पेंडिंग कितना रह गया, 2, बाजू में लिख के रख दिया हम लोग ने, P1 का 2 पेंडिंग है। फिर विदाउट कंप्लीटिंग
वो कहाँ पे जाने वाला है, आगे जाने वाला है। सो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कहाँ पे गया, P2 के पास गया। P2 को सर्विस टाइम कितना लगने वाला है, 3। दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, पूरा दे सकते हैं क्योंकि टाइम क्वांटम कितना था, 3। सो P2 को अभी के लिए काट मार दो, रिमूव कर दो दिमाग से भी और पेपर के ऊपर से भी, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। अभी आ गई P3 के पास। P3 को कितना टाइम लगने वाला है, 8। कितना मैं दे सकता हूँ, ओनली 3। सो बचा कितना हुआ है, 5। वो लिख के रखना है हम लोग को अलग से। विदाउट कंप्लीटिंग क्या करना है, उससे को भी आगे जाना है। अभी किसके पास जाएगा, वो P4 के पास जाएगा। तो P4 के पास गया तो P4 की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6। अलाउ कितनी है, 3। वापस 3 पेंडिंग रह गए। अभी वो राउंड रॉबिन है, मतलब ये घूम के वापस से आने वाला है P1 के पास, चेक करेगा तेरा कुछ प्रोसेस बाकी था तो हाँ, कितने का, 2। अलाउ कितना है, 3, असाइन कर दिया। मतलब अभी P1 भी चला गया P2 जैसा। अभी आएंगे हम लोग P2 के पास। P2 कंप्लीटेड है, कुछ ज़रूरत नहीं है। किसके पास जाएंगे अभी, P3 के पास। लेकिन P3 के 5 मिली सेकंड बचे हुए हैं, लेकिन मैं अलाउ कितना कर सकता हूँ, ओनली 3। सो 3 अलाउ किया तो वापस से 2 पेंडिंग रह गए, बाजू में लिख के रखो। और P4 को छोड़ दिया था हम लोग ने बीच में ही, कितने पे छोड़ा था, 3 पे। 3 कंप्लीट हुए थे, तो जो 3 है ना अभी अलोकेट कर दिया, मतलब P4 भी चली गई। और वापस से घूम के आया P1, कुछ तेरा पेंडिंग है, तो वो बोलेगा नहीं। P2 तेरा कुछ पेंडिंग है, कब का ख़त्म हो गया है, अभी आ गया P3 पे। P3 के 8 में से पहले में 3 ख़त्म हुए थे, वापस से 3 ख़त्म हुए सेकंड राउंड में, तो 3 3 6 ख़त्म हुए थे। अभी बच्चे कितने हैं, ओनली 2। और अलाउ कितना कर सकते हैं हम लोग, 3। तो हो सकता है कि नहीं, तो कर लिया अलाउ अलोकेट वो। सो उसका एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो गया। लेकिन वापस से वो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कहाँ पे जाएगा, तो P4 के पास जाएगा। लेकिन P4 3 के 2 राउंड में ही ख़त्म हो गया है। तो उसका ओवरऑल गैंट चार्ट कैसे बना, देखो P1 का 0 वेटिंग टाइम, लेकिन वापस से P1 कहीं पे तो है 12, वापस P1 दिख रहा है नहीं। P2 का वेटिंग टाइम देखो, पहले में 3 था, वापस कभी दिखा वो नहीं। P3 का वेटिंग टाइम देखो, 6, वापस है, हाँ है, कहाँ पे है, आगे 14 पे। और है क्या, हाँ है, किधर है, लास्ट में, क्योंकि P3 ही सबसे बड़ी प्रोसेस थी। बाद में जाओ P4 के पास। P4 कितनी बार रुकने वाला है, देखो P4 है 1, जिसका वेटिंग टाइम है 9, लेकिन टर्न अराउंड टाइम कितना है, 12, वापस दिख रहा है, हाँ सेकंड लास्ट में। P4 का वेटिंग टाइम कितना था, 17, और कंप्लीशन टाइम दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम कितना है, 20। अभी जैसे तुम लोग को बोला था कि अराइवल टाइम प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करना है, अराइवल टाइम को माइनस करना है। सो वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 तो क्या आएगा आपका, 12 - 1, 3। फिर फॉर प्रोसेस 2 क्या आएगा, कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12 - 0 आएगा वो। बाद में P2 क्या आएगा, तो 3 - 1। P3 एक ही बार में ख़त्म नहीं हो रही है, 3 अलग अलग जगह पे ख़त्म हो रही है। तो उसको क्या कंपेयर करेंगे हम लोग, 6 - 2, फिर 4 माइनस, अभी अराइवल टाइम क्या करना है, 14 - 9, ठीक है। पहले P3 कहाँ पे ख़त्म हुई थी वो, और लास्ट में 20 लिया, तो P3 कहाँ पे ख़त्म हुई थी, 17 पे। सो 20 - 17, ऐसा करके आंसर आएगा आपका 12। और P4 को देखेंगे तो वो क्या आएगा, पहला P4 कभी ख़त्म हो रहा है, वेटिंग टाइम कभी हो रहा है, तो 9 माइनस वेटिंग टाइम कितना है उसका, 3, प्लस और एक बार वो वेट कर रहा है कभी सेकंड लास्ट में, तो वो हो गया 17, दैट इज़ 17, माइनस पहले कहाँ पे छोड़ दिया था मैंने, P4 को ख़त्म करके 12 पे, तो 17 - 12 दैट इज़ 5, मतलब 11। सो ये क्या हो गया आपका वेटिंग टाइम। सिमिलरली टर्न अराउंड टाइम कैसे करते हैं,
प्रोसेस ख़त्म कभी हो रही है, P1 कभी ख़त्म हो रही है तो 14 पे, P2 कभी ख़त्म हो रही है तो 6, लेकिन अराइवल टाइम को माइनस करना है अपने को, तो 6 - 1। टर्न अराउंड टाइम ऑफ फॉर P3 क्या है, P3 कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो सबसे लास्ट में, दैट इज़ 22 पे, तो 22 पे ख़त्म हो रही है। लेकिन इतना ही नहीं लिखना है, हम लोग को क्या करना है, उसका प्रोसेस 3 का टर्न अराउंड टाइम माइनस करना है, सॉरी अराइवल टाइम, तो 22 - 2 आंसर क्या आता है 20। और लास्ट में P4 कभी ख़त्म हो रही है 20 पे, लेकिन 20 के साथ साथ हम लोग को क्या करना है, अराइवल टाइम को माइनस करना है। सो टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस 1 इज़ 14, P2 इज़ 5, P3 इज़ 20, P4 इज़ 17। एवरेज निकालना है, तो एवरेज जो आएगा वो, ये था आपका राउंड रॉबिन। मतलब क्या हो रहा था इसमें, प्रोसेसेस है, हर एक प्रोसेस के पास प्रोसेसर आएगा, लेकिन कितना आएगा, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ओनली, भले उसमें प्रोसेस ख़त्म हो या ना हो, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, उसके आगे। अगर प्रोसेस ख़त्म हो गई है तो उसको ओमिट कर दो और आगे जाओ। समझा? एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क के लिए आएगा ही। यही कंसेप्ट से काम करो तो आपको टाइम शेयरिंग सिस्टम का कंसेप्ट भी याद आ जाएगा। दोनों सिमिलर टाइप है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो, बुक में से पढ़ो, नहीं लिया है तो ख़रीदो, नहीं तो जो फ़ोटो भेजता हूँ, जो लेक्चर में चालू रहते हैं उसको रिफ़र करो, बट पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम आएगी। ये टाइम क्या ऑनलाइन होने वाली है नहीं, आपको फिज़िकली कॉलेज में आके ही एग्ज़ाम देनी है। सो बेटर रन, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ठीक है, थैंक यू।